Hello guys, welcome back to our channel. This is Nilesh Shinde and today we will discuss new chapter 15, that is pregnancy, childbirth and puerperium, जिसकी सीरीज स्टार्ट होती है O00 to O9A. Okay, first of all we will see what is the meaning of pregnancy, childbirth and puerperium. The pregnancy is the term used to describe the period in which a fetus develops inside the woman's womb or uterus. Pregnancy usually lasts about 40 weeks or just over 9 months, as measured from the last menstrual period to delivery. ओके तो ये टोटल 9 मंथ का टाइम पीरियड रहता है. ओके जो फीटस रहता है वो फीटस वुमेन वॉर्म्स और यूटेरस में डेवलप होता है, उस पीरियड को हम लोग प्रेगनेंसी बोलते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड बर्थ? चाइल्ड बर्थ इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड. ओके हम इसे बोलते हैं डिलीवरी. ओके चाइल्ड बर्थ इज आल्सो नोन एज लेबर, पर्चुरेशन एंड डिलीवरी. Childbirth is the complications of pregnancy where one or more babies exists the internal environment of the mother via vaginal delivery or cesarean section. So that is called as a childbirth. Then next, what is the meaning of puerperium? Puerperium is the period of about 6 weeks आफ्टर द चाइल्ड बर्थ. ओके जब डिलीवरी होती है उसके बाद का 6 वीक, ड्यूरिंग विच द मदर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन. ओके जो डिलीवरी होने के बाद का जो 6 वीक है उसको हम बोलते हैं पुएर्पेरियम. ओके so these all are the chapter specific guidelines points. Okay, so before going to discuss, we should know which parts working for female reproductive system. So female reproductive system includes the external genitalia and accessory ducts and glands that functions to procreate offspring. Okay, and this system includes ovaries or female gonads, uterine or fallopian tubes, okay, and accessory glands. Okay, ovaries are the primary sex organs of the female reproductive system, and uterine or we can say fallopian tube or uterus, vagina and external genitalia serve as the accessory organs of the female reproductive system, and the accessory glands acts to produce the mucus for the providing lubrications during the sexual intercourse. Okay, these all are the points, okay, or we can say parts which is used in female reproductive system. So now we will start chapter specific coding guideline. Okay, so we are going to start chapter specific guidelines. So first point we have general rules for obstetric cases. So what is the meaning of obstetric cases? Obstetric cases is relating to a childbirth and the process associated with it. Okay, so childbirth related जो भी updates है या we can say guidelines, so we will see. So in this point we have total 6 chapter specific guidelines, so one by one we will see. So first point, codes from chapter 15 and sequencing priority. Okay, so already we know this chapter having O series codes. Okay, so whatever obstetric cases requires codes from chapter 15, codes in the range is O00 to O9A, which is pregnancy, childbirth and puerperium. ओके सो जो प्रेगनेंसी रिलेटेड या चाइल्ड बर्थ रिलेटेड या पुएर्पेरियम रिलेटेड कुछ भी कंडीशन हो तो हम लोग ओ सीरीज रेफर करते हैं. तो अभी इसका सीक्वेंसिंग क्या, व्हाट इज द सीक्वेंसिंग? चैप्टर 15 कोड्स हैव द सीक्वेंसिंग प्रायोरिटी ओवर कोड्स फ्रॉम अदर चैप्टर. एडिशनली कोड्स फ्रॉम अदर चैप्टर्स मे बी यूज्ड इन द कंजक्शंस विद chapter 15 codes to further the specified conditions. Okay, generally
ओ सीरीज प्राइमरी जाता है। ओके, और बाकी की जो कंडीशंस हो गए, अदर चैप्टर की जो सीरीज होगी या कुछ सिम्टम्स कोड्स हो गए, तो वो हम लोग सेकेंडरी या उसके नीचे देते हैं। ओके, सो वी हैव वन कोविड रिलेटेड अपडेट्स, सो वी विल सी later. Okay, then next update we have, when will we code Z33.1. Okay, the provider document that the pregnancy is incidental to the encounter, then code Z33.1, which is pregnant state incidental. Okay, should be used in the place of any chapter 15 codes. It is the provider's responsibility to state that the conditions being treated is not affecting the pregnancy. Okay. In short, we can say in first point we saw for pregnancy conditions we have O series code. Okay. Then second update we saw sequencings. O series code should be primary. Then third update we saw when will we code Z33.1. Okay, this is the first update of this chapter. The next point, O series codes used only on the maternal record. Okay, so what is the maternal records? These records include identifying information. Okay, care during childbirth and after birth, and in this record antenatal notes will be there. Okay, what is the antenatal notes? We can say in this note patient basic informations of the patients will be there, like patient name, patient address, okay, and hospital number and details. Okay, as well as patient history, including any DX patient are suffering from and medications patient are taking. Okay, so whatever history is there, so that all informations included in antenatal notes. So maternal records having this all informations of the patient. Okay, so O series codes are to be used only on the base of maternal record, never on the record of the newborn. ओके, सो मैटरनल रिकॉर्ड के बेस पे ही ओ सीरीज कोड हम लोग देंगे. ओके, न्यू बोर्न रिकॉर्ड रहा तो इसके बेस पे हम नहीं देंगे. ओके, सो दिस इज अ सेकंड अपडेट ऑफ दिस chapter. Okay, once again I am going to revise all the updates. Okay, first update was all means whatever pregnancy conditions are there, so for that we have O series code, and that O series code should be primary. And in that same point we saw when will we code Z33.1, right? And next update we saw on the base of the maternal record we can code O series codes and not on the base of newborn records, right? Okay, so these are the updates. Okay, next updates we are going to discuss. Third update, final character for trimester. What is the trimester? So they divided into 3 trimester: first trimester, second trimester and third trimester. Okay, so what is the first trimester? First trimester is the first 12 weeks. ओके, सो जो 12 वीक्स रहते हैं वो आते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर? इट इज अ ट्रस्टेड सोर्स ऑफ द प्रेगनेंसी एंड इट इज अ क्रूशियल टाइम फॉर fetal development. And actually इसमें होता क्या है, the egg and sperm combines to form a zygote. okay, egg और sperm combine होके एक zygote तैयार करते हैं which implants in the wall of the uterus. Okay, the zygote becomes an embryo as its cells divide and grow. Okay, so ये सब प्रोसेस होने के बाद जो सेल्स रहते हैं वो डिवाइड होते हैं और ग्रो होना चालू करते हैं. Okay, next second trimester, weeks 14 to 27 trusted source are the second trimester.
ओके, सो 14 टू 27 का वीक्स जो रहता है, वो जो टाइम फ्रेम रहता है उसे हम बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर. ओके, so the fetus goes through many changes during this time, growing to around 1 foot long and weighing 1.5 pounds. Okay, so these are the second trimester. Okay, next, third trimester. The third trimester lasts from week 29 trusted source until delivery, which is usually around week 40. Okay, so हम लोगों ने देखा फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर था वो 3 मंथ का था, राइट. सेकंड ट्राइमेस्टर अप टू 6 मंथ और थर्ड जो ट्राइमेस्टर है वो अप टू 9 मंथ. ओके, सो जनरली हम लोगों ने सुना है कि जो डिलीवरी होता है वो 9 मंथ के बाद होता है, राइट. सो लेकिन हम लोगों को मेडिकल कोडिंग में कोडिंग करते समय वीक्स की जरूरत पड़ती है. जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 टू 13 वीक्स कंसिडर किया जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर 14 टू 27 एंड थर्ड ट्राइमेस्टर 28 टू 40 वीक्स. ओके, सो लेकिन ये जो रेंज है, ये रेंज कभी कभी जो प्रोजेक्ट रहता है प्रोजेक्ट के हिसाब से अपडेट होती है. ओके, सो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपके जो प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो चेंज हो सकता है. ज़्यादा चेंज नहीं होगा, सिर्फ 1 वीक का. लाइक अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 टू 13 है, तो कोई कोई प्रोजेक्ट 1 टू 14 वीक्स कंसिडर करने के लिए बोलते हैं. ओके, दिस इज द स्मॉल डिफरेंस. ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं कि चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन क्या है. ओके, सो ट्राइमेस्टर रिलेटेड जो भी चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन है वो मैं ये एक फोटो में से जो स्क्रीनशॉट है स्क्रीन पे, वो फोटो में से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ. ओके, सो फर्स्ट कोड है O12.0. ओके, जेस्टेशनल इडिमा अनस्पेसिफाइड ट्राइमेस्टर. अनस्पेसिफाइड ट्राइमेस्टर यानी जब प्रोवाइडर डॉक्यूमेंट में ट्राइमेस्टर या वीक्स कुछ भी नहीं मेंशन किया होगा, उस समय पे हम लोगों को जेस्टेशनल इडिमा अनस्पेसिफाइड ट्राइमेस्टर का कोड चूज करना पड़ेगा. दैट इज O12.00. ओके, ये कब करना पड़ेगा अनस्पेसिफाइड ट्राइमेस्टर वाला कोड? जब प्रोवाइडर डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं करते तब. O12.01 जेस्टेशनल इडिमा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. ओके, सो ये 3 जो कोड है, ये 3 कोड के लिए सपोज अभी जेस्टेशनल इडिमा है पेशेंट को और उसके साथ प्रोवाइडर लिखेगा कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या सेकंड ट्राइमेस्टर है या थर्ड ट्राइमेस्टर है, उस समय पे उस ट्राइमेस्टर के हिसाब से हम लोगों को वो कोड चूज करना पड़ेगा. ये ट्राइमेस्टर के जगह पे वीक्स भी दे सकते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा है 1 टू 13 या 14 जो वीक्स है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेंशन किए जाते हैं, और जो सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन सा वीक कंसिडर किया जाता है 14 टू 27 एंड थर्ड में 28 टू 40. ओके, सो इस तरह से हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो वीक इतना वीक दिया है तो उसके हिसाब से कौन सा ट्राइमेस्टर जाना चाहिए. ओके, देन लास्ट 2 जो कोड है कॉम्प्लिकेटिंग चाइल्ड बर्थ और कॉम्प्लिकेटिंग पिपेरियम. ओके, सो यही हमारा अपडेट है. सपोज ट्राइमेस्टर के अलावा भी हम लोगों को ये 2 कॉम्प्लिकेशन सिलेक्ट करना पड़ता है, सपोज पेशेंट को रहे तब. ओके, सो ये था बेसिक ट्राइमेस्टर का कंसेप्ट. ओके, सो अभी हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या अपडेट दे रहा है, चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन क्या है वो हम लोग अभी देखते हैं. हमारा थर्ड अपडेट है फाइनल कैरेक्टर फॉर ट्राइमेस्टर. द मेजॉरिटी ऑफ कोड्स इन चैप्टर 15 हैव फाइनल कैरेक्टर इंडिकेटिंग द ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, ये ऑलरेडी हम लोगों ने अभी देखा है. ओके, सो एग्जांपल के साथ
If trimester is not a component of code, it is because of the condition always occurs in a specific trimester, or the concept of trimester of pregnancy is not applicable. Certain codes have character for only certain trimester because the conditions doesn't occur in all trimester, but it may occur in more than just one. Okay, so इस तरह से हम लोगों को ये वाले जो कोड्स है वो चूज करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, असाइनमेंट ऑफ द फाइनल कैरेक्टर फॉर ट्राइमिनिस्टर शुड बी बेस्ड ऑन द प्रोवाइडर्स डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑफ द ट्राइमिनिस्टर और नंबर ऑफ वीक्स फॉर द करंट एडमिशंस और इनकाउंटर. ओके, सो ऑलरेडी मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया है. दिस अप्लाइज टू द असाइनमेंट ऑफ ट्राइमिनिस्टर फॉर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन as well as those that develop during or due to the pregnancy. ओके, जो प्रेगनेंसी के साथ जो भी कंडीशंस होती है, ओके, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, उसके साथ हम लोगों को ट्राइमिनिस्टर भी मेंशन हुआ मिलेगा. ओके, या नंबर ऑफ वीक्स मिलेगा. सो उसके हिसाब से हम लोगों को ट्राइमिनिस्टर चूज करना है. The provider's documentations of the number of weeks may be used to assign the appropriate code identify the trimester. Okay. Then third update या guideline जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस की है, लास्ट वाले जो 2 कोड्स थे, ओके, कॉम्प्लिकेटिंग चाइल्ड बर्थ एंड कॉम्प्लिकेटिंग प्यूपेरिया, उसके रिलेटेड है. whenever delivery occurs during the current admission and there is an in childbirth option for the obstetric complication being coded, the in childbirth code should be assigned. Okay, so whatever complicating childbirth or complicating puerperia, उस समय पे हम लोगों को वो कोड चूज करना है. ओके, ट्राइमिनिस्टर कोड चूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों के पास कॉम्प्लिकेटिंग चाइल्ड बर्थ या कॉम्प्लिकेटिंग प्यूपेरियम दिया रहेगा. ओके ओके, सो दिस इज द थर्ड चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ. सो आई एम गोइंग टू रिवाइज वंस अगेन. फर्स्ट पॉइंट वी सॉ, फर्स्ट अपडेट वी सॉ, pregnancy related condition. For pregnancy related conditions we have O series code. Okay, and that O series code should be primary. In that same point we saw when will we code Z33.1. Okay, second update we saw on the base of maternal record we can code O series, right? Not an on the base of newborn records. This is a second update of second guideline of this chapter. And third guideline of this chapter is trimester related. Okay, how to choose trimester and what are they, already we saw. Okay, so next chapter specific guideline, selections of trimester for inpatient admission for encompass more than one trimester. ओके गाइज, सबसे पहले मैं ये जो गाइडलाइन है वो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. ओके, उसके बाद में हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे. फॉर एग्जांपल, एक कोई प्रेग्नेंट लेडीज है और उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चालू है. ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 1 वीक से लेके 14 वीक तक, ओके, या 13 वीक तक. ओके, सो ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही उसके प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं. ओके, और उसके वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे इनपेशेंट, यानी वो जो लेडीज थी वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए. अभी जब ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए तब ट्राइमेस्टर कौन सा था? फर्स्ट, राइट. सो उसके बाद क्या होता है, डिलीवरी भी होती है और प्रेगनेंस यानी डिलीवरी होने के बाद वो पेशेंट जो है, जो लेडीज़ है, वो डिस्चार्ज भी होती है. तो ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियोज में हम ट्राइमेस्टर कौन सा चूज करेंगे? जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए उस समय का, या डिलीवरी हुई उस समय का, या डिस्चार्ज हुई उस समय का.
सो यही हमारा एक अपडेट है ये चैप्टर का। सो हम लोगों को यही देखना है, तो मैं अभी इसका आंसर अभी नहीं बताता। ओके, स्टेटमेंट रीड करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को ही डिसाइड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। When a patient is admitted to the hospital for complications of pregnancy during one trimester and remains in the hospital into a subsequent trimester, the trimester character for the antepartum complication code should be assigned on the basis of the trimester when complication developed. Okay, not the trimester of the discharge. ओके, सो वो स्टेटमेंट बोल रहा है जब डिस्चार्ज हो रहा है उस समय का हम लोगों को ट्राइमेस्टर कंसीडर नहीं करना है। कब का करना है? जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए थे, कॉम्प्लिकेशंस जब डेवलप हुए थे उस समय का हम लोगों को ट्राइमेस्टर कंसीडर करना है। ओके, सो आपका आंसर रहेगा ये। नेक्स्ट, if the condition developed prior to the current admission or encounter or represents a pre-existing condition, the trimester character for the trimester at the time of the admission or encounter should be assigned. ओके, सो ये सिनेरियो में क्या हो रहा है, जब लेडीज एडमिट हो रही है उसके पहले ही कंडीशन डेवलप हो रही है। सो उस समय पे हम लोगों को जब पेशेंट एडमिट हुआ है उस समय का ट्राइमेस्टर कंसीडर करना है। ओके ओके, दिस इज द फोर्थ चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन। ओके, once again I am going to revise all the points. Okay, for pregnancy we have O series codes and it should be primary. In that same guidelines we saw how to choose or how when will we code Z33.1. okay, second guideline we saw on the base of maternal record we can code O series, not on the basis of newborn records, right? And third guideline we saw trimester related, means in that we saw how to choose trimester and what are they, okay, blah blah blah, everything we saw. Then fourth point, fourth guideline just now we saw assign trimester code when complication developed, okay, not the trimester of the discharge. okay, so ये inpatient के लिए है। okay okay, so next fifth chapter specific coding guideline. okay, so unspecified trimester, already we know, already we discuss when we will choose unspecified trimester code, right? when जब भी प्रोवाइडर या डॉक्यूमेंट में ट्राइमेस्टर मेंशन नहीं रहेगा, ओके, सो उस समय पे हम लोग अनस्पेसिफाइड ट्राइमेस्टर वाला कोड चूज करेंगे। ओके, सो स्टेटमेंट क्या है? each category that include codes for the trimester has a code for unspecified trimester. The unspecified trimester code should rarely be used, such as when the documentations in the record is insufficient to determine the trimester and it is not possible to obtain clarification. okay, सो इस समय पे ये केस में हम लोग अनस्पेसिफाइड ट्राइमेस्टर वाला कोड चूज करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट सिक्स्थ चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन, 7 कैरेक्टर फॉर फीटस आइडेंटिफिकेशन। ओके, सो सबसे पहले मैं शॉर्टकट में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो ये जो टेबल है सीरीज है 0 1 2 3 4 5 एंड 9। ओके, सो जैसे हम लोगों ने ट्राइमेस्टर चूज किया था, ओके, ट्राइमेस्टर का कोड चूज किया था, उसी तरह से हम लोगों को फीटस का कोड चूज करना है। ओके, सो 0 हमेशा अनस्पेसिफाइड के लिए रहता है। ओके, अनस्पेसिफाइड ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, जब भी डॉक्यूमेंट में हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ओके, ये फीटस है या नहीं है, कौन सा फीटस है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तब हम लोग 7th कैरेक्टर 0 देंगे। ओके, सब डॉक्यूमेंट में मेंशन है फर्स्ट फीटस, ओके, फीटस 1, तो ये 1 7th कैरेक्टर रहेगा 1। सपोज फीटस 2 डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है, तो 7th कैरेक्टर रहेगा 2, वैसे ही 3, वैसे ही 4, वैसे ही 5। सपोज
फीटस 5 के अलावा कुछ अदर दिए हैं तो उस समय पे हम देंगे 7th कैरेक्टर 9. ओके, अभी हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट. वेयर अप्लीकेबल a 7th character is to be assigned for certain categories. ओके, ये जो कोड्स दिए हैं वो उस कोड के लिए ये फीटस कोड लगेगा. ओके, 7th कैरेक्टर लगेगा टू आइडेंटिफाई द फीटस फॉर विच द कॉम्प्लिकेशन कोड अप्लाइज. असाइन 7th कैरेक्टर 0 कब लगाते हैं ऑलरेडी मैंने बताया, तो कुछ अपडेट यानी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है. 7th कैरेक्टर 0 तब लगाएंगे जब फॉर सिंगल जेस्टेशन रहा तब हम 7th कैरेक्टर 0 लगाएंगे. व्हेन द डॉक्यूमेंटेशन इन द रिकॉर्ड इज इनसफिशिएंट टू डिटरमाइन द फीटस अफेक्टेड एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन क्लैरिफिकेशन. ओके, ऑलरेडी मैंने हिंदी में आप लोगों को भी एक्सप्लेन किया है. When it is not possible to clinically determine which fetus is affected. Okay, which fetus is affected we can't means identify from that document, so that time we can choose 0 as a 7th character. Okay, so ये सभी 6 chapter specific coding guideline हम लोगों ने देखे हैं. Okay, so once again I am going to revise all the points. Okay, for pregnancy we have O series code. Okay, and that O series code should be primary. In that same point we saw when will we code Z33.1. Second guideline we saw on the base of the maternal record we can code O series, not on the basis of the newborn records. Okay, then third guideline we saw trimester related, how to choose trimesters and what are they. Okay, so already we saw. Fourth guideline we saw assign trimester code when complications developed, not the trimester of the discharge. Okay, inpatient के लिए था. Okay, जब भी complication develop हुए थे उस समय का हम लोगों को trimester consider करना है. Okay, fifth अपडेट था यानी गाइडलाइन था अनस्पेसिफाइड ट्राइमेस्टर. ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है. व्हेन इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट फॉर ट्राइमेस्टर और नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन क्लैरिफिकेशन, दैट टाइम वी कैन चूज अनस्पेसिफाइड ट्राइमेस्टर. ओके, देन 7th कैरेक्टर रिलेटेड. 7th कैरेक्टर हम लोग कुछ कोड्स के लिए लगाएंगे. अभी इसमें फीटस है. ओके, फीटस 1 2 3 4 5. ओके, सो जो टेबल दिख रहा है उसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था 0 हमेशा अनस्पेसिफाइड के लिए जाता है. ओके, अनस्पेसिफाइड फीटस रहेगा तब हम ओ सीरीज यानी 7th कैरेक्टर 0 कंसिडर करेंगे. देन फीटस 1 to 5 के लिए 1 to 5 7th कैरेक्टर रहेगा. और सपोज फीटस 5 के अलावा कुछ दूसरा फीटस दिया है. ओके, सो वो जाएगा 7th कैरेक्टर 9. Okay, so these all are the what we can say chapter specific coding guideline. Okay, so ये एक पार्ट था. Okay, जो एक पॉइंट में ये 6 चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन थी. Okay, so इसी पॉइंट में एक अपडेट है. कंप्लीटेड वीक्स ऑफ जेस्टेशन. अभी वीक्स ऑफ जेस्टेशन का एक यानी गाइडलाइन है. फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट में मेंशन है वीक ऑफ जेस्टेशन 39 वीक 6 डे. ओके, तो उस समय पे 39 वीक कंसिडर करना है कि 40 वीक कंसिडर करना है. सो सिंपल चीज़ है, जब तक वो वीक ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट नहीं होता. अभी 39 वीक 6 डे है. ओके, तो 6 डे जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होता 6 डे को कंसिडर करना ही नहीं है. सबसे पहले जो 39 कंप्लीट है उसको ही वीक ऑफ जेस्टेशन कंसिडर करना है. ओके, सो यहाँ पे 39 वीक ऑफ जेस्टेशन रहेगा, 40 नहीं. ओके, सो वैसे ही हम लोगों को चेक करना है डॉक्यूमेंट में. ओके, सो कुछ भी डे रहो वो डे कंसिडर करना ही नहीं है जब तक वो 40 पूरा नहीं होता, जो वीक ऑफ जेस्टेशन पूरा नहीं होता तब तक हम लोग वो कंसिडर नहीं करते. सो ये वाले सिनेरियो में 39
वीक ऑफ जेस्टेशन है. ओके ओके. सो अभी नेक्स्ट बी, सिलेक्शंस ऑफ ओबी प्रिंसिपल और फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस. अभी प्राइमरी कोड कैसे डिसाइड करना है. ओके, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के लिए कैसे कौन सा प्राइमरी कोड जाएगा, ये हम लोगों को देखना है. ओके, फर्स्ट है रूटीन आउट पेशेंट प्री नेटल विजिट. ओके, सो कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज रहती है तो वो द आउट पेशेंट विजिट करती है रूटीन. ओके, चेकअप कराने के लिए जाती है. तो उस समय पे हम लोगों को कौन सा कोड करना चाहिए वो देखना है. सो फॉर रूटीन आउट पेशेंट प्री नेटल विजिट when no complications are present. ओके, कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं रहेंगे, जस्ट वो रूटीन चेकअप करने के लिए जा रही होगी, उस समय पे हम लोगों को कोड करना है Z34. ओके, विच इज एनकाउंटर फॉर सुपरविजन ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी शुड बी यूज्ड एज अ फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस. सो Z34 प्राइमरी कोड जाएगा. लेकिन यहाँ पे ये एक गाइडलाइन है, ये जब Z34 हम दे रहे हैं उस समय पे ओ सीरीज वाला कोड नहीं जाएगा. तो गाइडलाइन है, दिस कोड शुड नॉट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद चैप्टर 15 कोड. ओके, इट मीन्स ओ सीरीज कोड. नेक्स्ट सेकंड गाइडलाइन, सुपरविजन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी. ओके, सो उसके लिए कोड है O09. ओके, सो ये जो कोड है ये प्री नेटल पीरियड जब चालू रहता है उसी समय हम लोग ये कोड कर सकते हैं O09. और सपोज कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो उसके तब ये कोड करना है. राइट, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द लेबर और डिलीवरी एपिसोड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, असाइन अप्लीकेबल कॉम्प्लिकेशन कोड्स फ्रॉम chapter 15. Okay, and if there are no complication during the labor or delivery episode, assign code O18. suppose complication हो गए तो O09 देना है, और complication नहीं हो गए तो कैटेगरी O80 से हम लोगों को कोड चूज करना है. O80 यानी इनकाउंटर ऑफ फुल टर्म अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी. ओके, सिंपल है. नेक्स्ट सीक्वेंस देखना है. अभी सीक्वेंस कैसे रहेगा, फॉर रूटीन प्री नेटल आउट पेशेंट विजिट्स फॉर पेशेंट विथ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अ कोड फ्रॉम कैटेगरी O09 that is supervision of high risk pregnancy should be used as a first listed diagnosis. okay, O09 ये फर्स्ट जाएगा और सेकेंडरी जो कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे वो सेकेंडरी जाएंगे. सेकेंडरी चैप्टर 15 codes may be used in the conjunctions with these codes if appropriate. okay, so first primary code जाएगा O09. okay okay, next third guideline, episodes when no delivery occurs. ओके, सपोज डिलीवरी नहीं हुई है तो हम लोग कोड कैसे करेंगे, सीक्वेंस कैसे देंगे. तो जो भी कॉम्प्लिकेशन हो गए, प्रिंसिपल कॉम्प्लिकेशंस हो गए, उसको हम प्राइमरी कोड देंगे, और बाकी की जो कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ भी टेस्ट या कुछ भी डायग्नोसिस हो गए, वो सेकेंडरी सीक्वेंस के हिसाब से देंगे. राइट, तो जो भी प्रिंसिपल कॉम्प्लिकेशंस रहेगा उसे हम प्राइमरी देंगे. चलो स्टेटमेंट देखते हैं. If episode when no delivery occurs, the principal diagnosis should be correspond to the principal complications of the pregnancy which necessitated the encounter. okay, so encounter के समय जो complication लेके आई थी वो complication को हम primary कोड देंगे. should more than one complication exist, all of which are treated or monitored, any of the complications codes may be sequenced first. okay, so जो भी इनकाउंटर के समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेके आए थे पेशेंट, वो कॉम्प्लिकेशन को हम प्राइमरी कोड देंगे. ओके, नेक्स्ट अपडेट 4, व्हेन अ डिलीवरी ऑकर्स. ओके, सो इसमें क्या है, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज रहेगी हॉस्पिटल में एडमिट होगी. ओके, और एडमिशन के समय पे प्रेग्नेंट यानी डिलीवरी होती है. सो उस समय जो कंडीशंस रहेगी वो कंडीशंस को हम प्राइमरी DX देंगे, डायग्नोसिस देंगे. ठीक है, सपोज एडमिशन के समय मल्टीपल
यानी कंडीशंस रही तो क्या करेंगे, जो भी डिलीवरी रिलेटेड इम्पोर्टेंट डीएक्स है, ओके, यानी मोस्ट रिलेटेड है, उसको हम प्राइमरी डीएक्स देंगे और बाकी की जो कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे उसको सेकेंडरी देंगे, यानी एडिशनल कोड देंगे। ठीक है। सो स्टेटमेंट क्या है, when obstetric patient is admitted and delivered during the admission, the condition that prompted the admission should be sequenced as a principal diagnosis. Okay. In case if multiple conditions prompted the admission, okay, sequence the one most related to the delivery as the principal diagnosis. Okay, a code for any complications of the delivery should be assigned as an additional diagnosis. Okay, so whatever admission related conditions, admissions के टाइम पे जो भी conditions रहेगी उसको हम प्राइमरी कोड देंगे और जो एडिशनली कॉम्प्लिकेशंस है, ओके, डायग्नोसिस है, उसको एडिशनली यानी सेकेंडरी टर्शरी ऐसे कोड करेंगे। ओके, देन सपोज द पेशेंट का सीजरियन डिलीवरी हुआ है। इन केस ऑफ सीजरियन डिलीवरी, इफ द पेशेंट वाज एडमिटेड विद द कंडीशन दैट रिजल्टेड इन परफॉर्मेंस ऑफ सीजरियन प्रोसीजर, ओके, जो सीजरियन प्रोसीजर हुई थी उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसके वजह से पेशेंट एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, तो क्या करना है, दैट कंडीशन शुड बी सिलेक्टेड एज द प्रिंसिपल डायग्नोसिस। ओके, सो सीजरियन हुआ था, उसके वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो पेशेंट फिर से वो एडमिट हो रहा है, तो वो जो कॉम्प्लिकेशंस है एडमिट होने के, ओके, जो एडमिट होने का जो रीज़न है वो कंडीशन को हम लोगों को प्राइमरी कोड देना पड़ेगा। ठीक है। इसका उल्टा हुआ तो इफ द रीजन ऑफ द एडमिशन वाज अनरिलेटेड टू द कंडीशंस रिजल्टिंग इन द सीजरियन डिलीवरी। अभी सीजरियन डिलीवरी है, लेकिन डिलीवरी पेशेंट है, लेकिन वो फिर से एडमिट हो रहा है, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है वो अनरिलेटेड है, सीजरियन रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, द कंडीशन रिलेटेड टू द रीजन ऑफ द एडमिशन शुड बी सिलेक्टेड एज द प्रिंसिपल डायग्नोसिस। ओके, सो जो भी रीजन ऑफ एडमिशन है उसको हम लोगों को प्राइमरी कोड ही देना है। ओके, सो वो रिलेटेड रहो कि अनरिलेटेड रहो। ओके, नेक्स्ट गाइडलाइन, फिफ्थ, outcome of delivery. Okay, so already we have discussed about this. Okay, maternal record, newborn record, subsequent record, already we have discussed. Okay, so what is the guideline? A code from category Z37, which is outcome of delivery, should be included on every maternal record when a delivery has occurred. Okay, so Z37 कोड करने के लिए ये मैटरनल रिकॉर्ड में होना चाहिए आउटकम ऑफ डिलीवरी। ओके, सपोज दिस कोड्स आर नॉट बी यूज्ड ऑन सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड ऑन न्यूबॉर्न रिकॉर्ड। ओके, सो सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड और न्यूबॉर्न रिकॉर्ड का हम लोग रिपोर्ट यानी कोड कर नहीं पाएंगे। ओके, सो these are the selections of OB principle or first listed diagnosis guidelines. Okay, so once again I'm going to revise all two guidelines of the chapter. Okay, first was general rules of obstetric cases, and second we saw selections of OB principle and first listed diagnosis. So in general rules of obstetric cases, already we saw for pregnancy conditions we have O series codes. Okay, and that O series code should be primary. Okay, and when will we code Z33.1, we already we have seen in first guideline. Second guideline was on the base of the maternal record we can code O series, not on the newborn record or subsequent record. Okay, third guideline was trimester related, how to choose trimester codes. Okay, and what are they. Okay, and fourth guideline we saw assign trimester code when complications developed, not the trimester of the discharge. Okay, then fifth guideline we saw unspecified trimester,
Okay, so when insufficient document for prime minister or not possible to obtain clarifications from document, that time we can choose unspecified prime minister. Same for fetus also. Okay, sixth guideline was seventh character related. Already we saw O for unspecified, 1 to 5 for fetus 1 to fetus 5, and 9 character means seventh character was 9 for other fetus. Then seventh guideline, complicated means completed weeks of gestation. Okay, so already we saw one example. Then first listed diagnosis. So in that total 5 guidelines already we saw. रूटीन आउट पेशेंट. ओके, सो उसके लिए ये Z34 कोड है. ओके, सेकंड गाइडलाइन हम लोगों ने देखी थी O09, ये प्राइमरी कोड जाएगा और बाकी के जो कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे वो सेकेंडरी जाएंगे. लेकिन सपोज कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो अनकॉम्प्लिकेशन के लिए OET कोड है अपने पास. ओके, इसमें थर्ड गाइडलाइन थी एपिसोड्स व्हेन नो डिलीवरी ऑकर्स. तो इसमें क्या था, जो भी प्रिंसिपल कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे वो प्राइमरी जाएंगे. फोर्थ गाइडलाइन था व्हेन डिलीवरी ऑकर्स. सो वॉट एवर रीजन फॉर एडमिशंस दैट कंडीशंस शुड बी प्राइमरी कोड. ओके, एंड देन फिफ्थ फॉर आउटकम ऑफ डिलीवरी. सो ये Z37 कोड करने के लिए वो मैटरनल रिकॉर्ड होना चाहिए. हम सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड या न्यूबॉर्न रिकॉर्ड से कोड नहीं करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट गाइडलाइन सी, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस वर्सेस कंडीशंस ड्यू टू प्रेगनेंसी. ओके, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस मीन्स जो प्रेग्नेंट यानी डिलीवरी होने के पहले जो कंडीशंस रहते हैं, ओके, उसको हम प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस बोलते हैं. ओके, और जो प्रेगनेंसी होते समय जो कोई प्रॉब्लम होते वो उसके बारे में देखना है, और प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में. तो इसमें सीक्वेंस क्या रहेगा, क्या गाइडलाइन है. ओके, सो ये हम लोग इस पॉइंट में देखेंगे. Certain category in chapter 15 distinguish between conditions of the mother that existed prior to pregnancy, that is called pre-existing, and those that are the direct result of pregnancy. When assigning codes from chapter 15, it is important to assess if a condition was pre-existing prior to pregnancy or developed during or due to pregnancy in order to assign the correct code. Okay, so प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ भी हम लोगों को कोड करना है तो ये तीनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी हम लोग कोड करेंगे. Category that do not distinguish between pre-existing and pregnancy related conditions may be used for either. It is acceptable to use code specifically for the puerperium with code complicating pregnancy and childbirth if condition arises postpartum during the delivery encounter. Okay, so इस तरह से हम लोगों को कोड करना है. ओके, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस वर्सेस ड्यू टू प्रेगनेंसी. ओके, सो कोई कुछ भी रहा तो हम लोगों को कोड करना है. सपोज ये डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्री एग्जिस्टिंग एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशन, दैट टाइम क्या करना है, जो भी पोस्टमार्टम रहेगा, चाइल्ड बर्थ, पिपेरिया, उसके रिलेटेड हम लोगों को कोड करने पड़ेंगे. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट गाइडलाइन इंटरेस्टिंग है. ओके, इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है. ओके, सो अभी प्रेगनेंसी रहती है, प्रेगनेंसी लेडीज़ को कुछ अदर डिसीज हो गए, लाइक हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, CKD हो गया. तो उस समय पे कोड कैसे करने हैं, कौन सा कोड प्राइमरी जाएगा, कौन सा कोड सेकेंडरी जाएगा, ये सभी चीज़ें हम लोगों को देखनी है. यही मेन अब गाइडलाइंस है इस चैप्टर की. ओके, सो वन बाय वन हम लोग देखते हैं. सो नेक्स्ट गाइडलाइन है, चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन है D, प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन इन
प्रेगनेंसी. ओके, सो प्रेगनेंसी लेडीज को ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, तो उस समय पे कोड कैसे करेंगे. सो मैंने आप लोगों को एक चार्ट दिया है. ओके, ट्री डायग्राम बोल सकते हैं. सो सबसे पहले यहाँ पे दिया है स्टार्ट का बटन दिया है. ओके, सो उसके नीचे दिया है व्हाट कंडीशंस ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, सो उसमें दिया है हाइपरटेंशन और डायबिटीज. सो हम लोग अभी हाइपरटेंशन देख रहे हैं, तो हाइपरटेंशन में जाएंगे. हाइपरटेंशन में प्री एग्जिस्टिंग और प्रेगनेंसी इंक्लूडेड है. तो सबसे पहले हम प्री एग्जिस्टिंग देखते हैं, बाद में प्रेगनेंसी इंक्लूडेड देखते हैं, इंड्यूस देखते हैं, सॉरी. सो प्री एग्जिस्टिंग में क्या है, कैटेगरी O10 which is pre-existing hypertension complication pregnancy. Okay, childbirth and puerperium includes codes for hypertensive heart and hypertensive chronic kidney disease. When assigning one of the code, okay, one of the O10 codes that includes hypertensive heart disease or hypertensive chronic kidney disease, it is necessary to add the secondary code from the appropriate hypertension category to specify the type of hypertension or chronic kidney disease. Okay, so ये जो ट्री डायग्राम है, ये ट्री डायग्राम में देखो हम लोगों को सबसे पहले O10 देना पड़ेगा, जो हाइपरटेंशन. ओके, देन उसकी जो कंडीशंस है, सपोज हाइपरटेंशन विथ हार्ट डिसीज होगा, तो हम लोगों को O10 प्लस I11 देना पड़ेगा. ओके, ओ सीरीज हमेशा प्राइमरी जाएगी और जो रिमेनिंग कंडीशंस रहेगी वो सेकेंडरी जाएगी. देन थर्ड बॉक्स में दिया है हाइपरटेंशन विद क्रोनिक किडनी डिसीज. सो इसके लिए प्राइमरी कोड जाएगा O10.2 एंड एडिशनल कोड जाएगा I12. ओके, देन फोर्थ बॉक्स दिया है हाइपरटेंशन विद हार्ट डिसीज एंड क्रोनिक किडनी डिसीज. इसके लिए प्राइमरी कोड रहेगा O10.3 कैटेगरी एंड एडिशनल कोड रहेगा I13 कैटेगरी. ओके, एंड लास्ट बॉक्स है हाइपरटेंशन विद प्री एक्लैम्प्सिया. ओके, सो इसका प्राइमरी कोड रहेगा O11 कैटेगरी एंड एडिशनल रहेगा O10. ओके, ओके, सो ये हो गया हाइपरटेंशन, प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन. अभी नेक्स्ट गाइडलाइन देखते हैं. ई, फीटल कंडीशंस अफेक्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ द मदर. ओके, इसके अंदर दो गाइडलाइंस है, वन बाय वन दोनों देखते हैं. इस फर्स्ट है कोड्स फ्रॉम कैटेगरीज O35 एंड O36 एंड सेकंड है इन यूटेरो सर्जरी. First, codes from category O35, which is maternal care for unknown or suspected fetal abnormality and damage. ओके, तो O35 कब देंगे, जब फीटल अबनॉर्मेलिटी रहेंगी और कुछ डैमेज रहेगा, उस समय पे O35 देंगे. ओके, और O36 विच इज़ मैटरनल केयर फॉर अदर फीटल प्रॉब्लम, जो फीटल प्रॉब्लम कुछ भी डिफरेंट फीटल प्रॉब्लम्स है, उस समय पे O36 देंगे. और असाइन ओनली व्हेन द फीटल कंडीशन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडिफाइंग द मैनेजमेंट ऑफ द मदर, that is by requiring diagnostic studies, additional observation, special care or terminations of pregnancy. The fact that the fetal condition exists doesn't justify assigning a codes from this series to the mother's record. Okay, so ये दो codes है. Okay, O35 और O37. Then next, in utero surgery, in case when surgery is performed on the fetus, okay, a diagnosis codes from category O35, which is maternal care for unknown or suspected fetal abnormalities and damage, okay, should be assigned. Identifying the fetal condition, assign the appropriate procedure code for the procedure performed. okay, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म होगी वो उसको हम लोगों को कोड करना पड़ेगा. नो कोड फ्रॉम चैप्टर 16, द प्रिंसिपल पेरीनेटल कोड्स शुड बी यूज्ड ऑन द मदर्स रिकॉर्ड
to identify fetal conditions. Surgery performed in utero on the fetus is still to be coded as an obstetric encounter. Okay. सो सपोज फीटस के ऊपर कुछ सर्जरी हुई है तो उस समय पे हम लोगों को उस प्रोसीजर के हिसाब से अप्रोप्रिएट कोड देना है. ओके. सो नेक्स्ट गाइडलाइन है एफ HIV इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड प्यूपेरियम. ओके. सो कोई लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट है और उसको HIV भी है तो उस समय पे कोड कैसे करना चाहिए और कौन से एडमिट यानी कौन से कंडीशन पे कौन सा कोड करना चाहिए उसके लिए हम लोगों के पास गाइडलाइन है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड प्यूपेरियम पेशेंट एडमिटेड बिकॉज ऑफ द HIV रिलेटेड इलनेस. ओके. सो HIV पर्सन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो एडमिट हो रही है HIV रिलेटेड इलनेस के लिए. शुड बी रिसीव अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस फ्रॉम कैटेगरी O98.7 विच इज HIV डिसीज कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड प्यूपेरियम, फॉलो बाय द कोड्स फ्रॉम फॉर द HIV रिलेटेड इलनेस. ओके. सो उसके लिए हम लोगों के पास O98.7 कोड है. ये कोड करेंगे जब पेशेंट प्रेग्नेंट भी है और उसके HIV भी है और HIV इलनेस के लिए वो एडमिट हो रहा है. इस सिनेरियो में हम लोग O98.7 कोड करेंगे. देन पेशेंट्स विथ असिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन स्टेटस एडमिटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अभी प्रेगनेंसी के लिए वो एडमिट हो रही है और HIV असिम्टोमेटिक है. ओके. सिम्टम्स नहीं है तो हम लोगों को कोड करना चाहिए O98.7 एंड Z21 विच इज असिम्टोमेटिक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन स्टेटस. ओके. सो हम लोगों को असिम्टोमेटिक स्टेटस का भी कोड करना चाहिए. ओके. सो ये है HIV इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ और प्यूपेरियम के कोड. ओके. सो अभी तक हम लोगों ने देखा है प्रेग्नेंट लेडीज़ को हाइपरटेंशन रहा तो कौन सा कोड करना चाहिए. ओके. सो ऑलरेडी मैंने टेबल में बताया था O10 सीरीज वाली जाएगी. ओके. प्री एग्जिस्टिंग का हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी के लिए O10 याद रखना है अपने को. देन हम लोगों ने देखा था कि HIV इन्फेक्शन रहा तो कौन से कोड जाने चाहिए तो उसके लिए ये था O98.7. ओके. ये भी कोड याद रखे तो इजीली हम लोग कोडिंग कर पाएंगे. ठीक है. देन अभी आता है डायबिटीज मेलाइटस इन प्रेगनेंसी. ओके. सो प्रेग्नेंट लेडीज को डायबिटीज मेलाइटस है तो कोड कौन सी जानी चाहिए उसके लिए कोड रहता है O24 कैटेगरी. ओके. सो हम लोग ये ग्राफ में भी T डायग्राम में भी देख सकते हैं. डायबिट्स के कॉलम में प्री एग्जिस्टिंग एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड. सो प्री एग्जिस्टिंग डायबिट प्री एग्जिस्टिंग यहाँ पे टाइप 1 के लिए है O24.0 कैटेगरी और एडिशनली हम लोगों को डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ का कोड देना पड़ेगा E10 कैटेगरी. ओके. टाइप 2 प्राइमरी कोड रहेगा O24.1 कैटेगरी एंड एडिशनली कोड रहेगा E11 टाइप 2 के लिए. टाइप 1 के लिए E10 था, टाइप 2 के लिए E11 है. देन अदर प्री एग्जिस्टिंग के लिए प्राइमरी कोड रहेगा O24.8 कैटेगरी एंड एडिशनली रहेगा E09 E13. ओके. सो हम लोगों को कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी कोड्स के नीचे रहते हैं. ओके. एंड अनस्पेसिफाइड प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ के लिए E11 जाएगा. ओके. प्राइमरी कोड O24.3 एंड एडिशनली E11. ओके. सो यहाँ पे हम लोगों के पास एक गाइडलाइन है. यूज कोड्स फ्रॉम Z79.4 फॉर लॉन्ग टर्म इंसुलिन और Z94.8 फॉर लॉन्ग टर्म हाइपरग्लाइसेमिक. ओके. एज नेसेसरी. ओके. सभी सपोज डॉक्यूमेंट लॉन्ग टर्म इंसुलिन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोगों के पास Z सीरीज वाले कोड भी है. ओके. सो
Diabetes mellitus is a significant complicating factor in pregnancy. Pregnant women who are diabetic should be assigned a code from category O24, which is diabetes mellitus in pregnancy. ओके, सो इस टाइप के हम लोगों को कोड करना पड़ेगा. नेक्स्ट गाइडलाइन आई, जेस्टेशनल डायबिटीज. Gestational diabetes can occur during the second and third trimester of pregnancy in women who were not diabetic prior to pregnancy. Okay, gestational diabetes can cause complications in the pregnancy similar to those of pre-existing diabetes mellitus. It also puts the woman at greater risk of developing diabetes after the pregnancy. Code for gestational diabetes are in subcategory O24.4, which is gestational diabetes mellitus. Okay, so इसके लिए कोड है O24.4. No other code from category O24, which is diabetes mellitus in pregnancy, childbirth and puerperium, should be used with a code from O24.4. ओके, सो जेस्टेशनल डायबिटीज का सब कैटेगरी कोड है O24. ओके, द कोड्स अंडर सब कैटेगरी O24.4 इंक्लूड डाइट कंट्रोल, ओके, इंसुलिन कंट्रोल एंड कंट्रोल बाय ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स. ओके, सो हम लोगों के पास डाइट कंट्रोल, इंसुलिन कंट्रोल एंड कंट्रोल बाय ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के लिए भी सब कैटेगरीज है. सो उसके साथ साथ हम लोगों को इसका भी कोड देना पड़ेगा जब डॉक्यूमेंट सपोर्ट कर रहा होगा तब. इफ अ पेशेंट विद जेस्टेशनल डायबिटीज ट्रीटेड विद बोथ डाइट एंड इंसुलिन, ओके, ओनली द कोड फॉर इंसुलिन कंट्रोल रिक्वायर्ड. ओके, सो मैं आप लोगों को एक चार्ट दे रहा हूँ स्क्रीन पे. उस चार्ट के हिसाब से हम लोगों को ये वाले जो गाइडलाइंस है ये फॉलो करना है. सपोज जेस्टेशनल डायबिटीज ट्रीटेड विथ बोथ डाइट एंड इंसुलिन. अभी जेस्टेशनल डाइट एंड इंसुलिन दोनों से ट्रीट कर रहे हैं तो हम लोगों को कोड देना पड़ेगा इंसुलिन कंट्रोल. ओके, इफ पेशेंट विथ जेस्टेशनल डायबिटीज इज ट्रीटेड विथ बोथ डाइट एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशन, तो उस समय पे हम लोगों को कोड देना पड़ेगा कंट्रोल बाय ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग. ओके, कोड Z79.4 लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इंसुलिन और कोड Z79.84 लॉन्ग टर्म use of oral hypoglycemic drug should not be assigned with codes from subcategory O24.4. ओके, सो जब O24.4 हम लोग कोड करेंगे तब उस समय पे ये कोड उसके साथ नहीं जाएंगे, यानी हम लोग कोड नहीं कर सकते. ओके, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है शुड नॉट बी असाइंड विथ कोड्स फ्रॉम सब कैटेगरी O24.4. तो ये हमारा गाइडलाइन है. ओके, एन abnormal glucose tolerance in pregnancy is assigned a code from subcategory O99.81, which is abnormal glucose complicating pregnancy, childbirth and puerperium. तो हमारे पास O99.81 का भी कोड है abnormal glucose complicating pregnancy. सो ये हमारे पास चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन है. ओके, रिलेटेड जेस्टेशनल डायबिटीज. सो यहाँ पे एक ही बात याद रखनी है, ये एक चार्ट O24.4 के साथ ये जेड सीरीज कोड नहीं जाएंगे. ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन जे, सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक कॉम्प्लिकेटिंग अबॉर्शन, प्रेगनेंसी, चाइल्डबर्थ एंड पुर्पेरिया. ओके, when assigning a chapter 15 code means O series code for sepsis complicating abortion, pregnancy, childbirth and puerperium, a code for the specific type of infection should be assigned as a additional diagnosis
ओके, सो हम लोग जब सेप्सिस के कॉम्प्लिकेटिंग जो अबॉर्शन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और पीफोरियम के कोड्स हैं, ओके, जब हम लोग ये कोड करेंगे तब हम लोगों को एडिशनली डायग्नोसिस कोड करना पड़ेगा. ओके, इफ सर्विस सेप्सिस इज प्रेजेंट, अ कोड फ्रॉम कैटेगरी R65.2 which is severe sepsis and code for associated organ dysfunctions should also assign as an additional diagnosis. Okay, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है. सपोज R65.2 सेवियर सेप्सिस किया है और उसके साथ साथ ऑर्गन डिस्फंक्शन भी है, तो हम लोगों को ये दोनों कोड असाइन करना पड़ेगा. ओके, द नेक्स्ट चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन है कि puerperal sepsis. Okay, puerperal sepsis code OET5, okay, which is puerperal sepsis, should be assigned with the secondary code to identify the causal organism. For example, for a bacterial infection, assign a code from category B95 to B96 category, which is bacterial infections in condition classified elsewhere. A code from category E40, which is Streptococcus sepsis, or E41 other sepsis, should not be used for puerperal sepsis. Okay, so ये जो Streptococcus sepsis है और other sepsis है, ये puerperal sepsis के लिए कोड नहीं करने. should not be used for the puerperal sepsis. If applicable, use additional codes to identify severe sepsis, that is R65.2 कैटेगरी. ओके, सपोज अप्लीकेबल है जो स्ट्रेप्टोकोकस या सेप्सिस जो अप्लीकेबल है, तो उस समय पे हम लोगों को सेवियर सेप्सिस R65.2 कैटेगरी को कोड देने पड़ेंगे. एंड एनी एसोसिएटेड एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन, और जो भी एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन के कोड रहेंगे वो भी साथ में देने पड़ेंगे. लेकिन यहाँ पे प्राइमरी कोड पुएर्पेरल सेप्सिस का O85 रहेगा. राइट. ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन I, अल्कोहल, टोबैको एंड ड्रग यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पुएर्पेरियम. सो अल्कोहल, टोबैको और ड्रग, ये तीनों के लिए डिफरेंट ड्रग है. ओके, डिफरेंट कोड्स है. ओके, सो अल्कोहल के लिए कौन सा कोड देना चाहिए, टोबैको के लिए कौन सा कोड देना चाहिए और ड्रग के लिए कौन सा कोड देना चाहिए, ये चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन हमारे पास है. ओके, सो कोई प्रेग्नेंट लेडीज है और वो अल्कोहल का सेवन कर रही है, तो उस समय पे हम लोगों को कोड देना चाहिए O99.31 विच इज अल्कोहल यूज कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पुएर्पेरियम. और उसके साथ हम लोगों को अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए, ओके, हम लोगों को कोड देना है F10 विच इज अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर्स. ओके, सो ये दो कोड जाएंगे जब अल्कोहल यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पुएर्पेरियम. ओके, then next for tobacco used during pregnancy, that time we can give O99.33 which is smoking complicating pregnancy, childbirth and puerperia. और टोबैको या निकोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कोड है F17 विच इज निकोटीन डिपेंडेंट. ओके, सो ये दोनों कोड हम कब देंगे, जब प्रेग्नेंट लेडीज टोबैको का सेवन करते हैं तब. ओके, देन थर्ड है ड्रग यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पुएर्पेरियम. सो उस समय पे हम लोगों को कोड देना है O99.32 विच इज ड्रग यूज कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पुएर्पेरियम. ओके, और जो ड्रग है, ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को सेकेंडरी कोड देना है F11 to F16 कैटेगरी या F18 to F19. ओके, सो इस कैटेगरी में से ड्रग जाएगा. ओके, सो ये तीन चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन है. ओके, फॉर प्रेगनेंसी. देन नेक्स्ट चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन यम, पॉइजनिंग, टॉक्सिक इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स एंड अंडर डोजिंग इन द प्रेग्नेंट पेशेंट. ओके, सो अभी ये पॉइजन या टॉक्सिक इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट्स ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में कवर किया है. ओके, a code from subcategory O9A.2
injury, poisoning, and certain other consequences of external causes complicating pregnancy, childbirth, and puerperia should be sequenced first, followed by the appropriate injury, poisoning, and toxic effect, adverse effect, and underdosing code, and then the additional code that specific the condition caused by the poisoning, toxic effect, adverse effect और अंडर डोजिंग। ओके, सेम पैटर्न में हम लोगों को इसको भी कोड करना है। ओके, सो इस टाइप का कभी पेशेंट रहा जो इंजरी है पॉइजनिंग की वजह से, तो उसको कोड देना है O9A.2 और उसके साथ साथ हम लोगों को एडिशनली कोड देना पड़ेगा फॉर पॉइजनिंग है या टॉक्सिक इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है या अंडर डोजिंग है, ये मेंशन करने के लिए हम लोगों को एडिशनल कोड देना पड़ेगा। ओके, सो ये है पॉइजनिंग रिलेटेड चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन। ओके, देन हमारे पास है नेक्स्ट चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन एन, नॉर्मल डिलीवरी। अभी नॉर्मल डिलीवरी कोड है OET। ओके, इसमें भी 3 चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन है। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं एनकाउंटर फॉर फुल टर्म अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी। ओके, सो नॉर्मल डिलीवरी थी तब हम लोगों को OET कोड करना है। ओके, नॉर्मल डिलीवरी यानी उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए और सिंगल बेबी होना चाहिए, वो भी हेल्दी। ओके, सो उस समय पे हम OET कोड करेंगे। Code ET should be assigned when the woman is admitted for a full-term normal delivery and delivers a single healthy infant without any complications antepartum during the delivery or postpartum during the delivery episode. Okay, Code ET OET is always a principal diagnosis. It is not to be used if any other code from chapter 15 is needed to describe a current complications of the antepartum delivery or postpartum period. Additional codes from other chapter may be used with code OET if they are not related to or are in any complicating the pregnancy. सो इसमें सिंपल है, जब नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, ओके, डिलीवरी होती है, तब हम लोग OET कोड देंगे और हमेशा वो प्रिंसिपल डायग्नोसिस जाएगा। सपोज अनरिलेटेड कुछ डायग्नोसिस हो गई तो उसको भी हम लोग एडिशनली कोड कर सकते हैं। ओके, वो अनरिलेटेड डायग्नोसिस होनी चाहिए। ओके, सो ऑब्वियसली सपोज नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम कोड दे रहे हैं OET, सो डिलीवरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन का कोड जाएगा नहीं, राइट। देन नेक्स्ट, अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी विथ रिजॉल्व एंटीपार्टम कॉम्प्लिकेशन। Code OET may be used if the patient had a complication at some point during the pregnancy, but the complication is not present at the टाइम ऑफ द एडमिशन फॉर डिलीवरी। ओके, सो जब पेशेंट एडमिट हो रहा था डिलीवरी के लिए तो उस समय पे कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी जब हो रही थी तब उस समय पे कॉम्प्लिकेशन आए होंगे, तब भी हम लोगों को OET कोड देना है। ओके, सो थर्ड, आउटकम ऑफ डिलीवरी फॉर OET। ओके, सो Z37.0 सिंगल लाइव बर्थ इज द ओनली आउटकम of delivery code appropriate for use with OET. okay, so outcome of delivery के लिए Z37.0 okay, ये कोड करना है OET के साथ। नेक्स्ट चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन O, the peripartum and postpartum periods. okay, so what is the peripartum and postpartum? The postpartum period begins immediately after delivery. okay, so after delivery का जो भी टाइम रहता है, okay, 6 मंथ का जो 6 वीक का जो टाइम रहता है उसको बोलते हैं postpartum. okay, and peripartum period is defined as the last month of pregnancy to 5 month postpartum. okay, so you know difference peripartum and postpartum. The next, peripartum and postpartum complications. The postpartum complication is any complications occurring within the 6 week period. okay, so postpartum यानी 6 week okay, after delivery, तो उसमें जो भी complications आते हैं वो postpartum में आते हैं। Then next, pregnancy related complications
after 6-week period. Chapter 15 codes, O series codes, may also be used to describe pregnancy related complications after the peripartum or postpartum period if the provider documents that a condition is pregnancy related. ओके सो उस समय पे हम लोग वो कोड कर सकते हैं. ओके कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड जो पोस्टपार्टम रहो या पेरीपार्टम, उसमें सपोज कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कोड्स है. ओके नेक्स्ट चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन. एडमिशंस फॉर रूटीन पोस्टपार्टम केयर फॉलोइंग डिलीवरी आउटसाइड हॉस्पिटल. ओके सो कोई पेशेंट है और उसका डिलीवरी हॉस्पिटल के बाहर हुआ है. ओके और कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं, फिर भी रूटीन पोस्टपार्टम के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है, तो उस समय हमारे पास कोड है Z39.0 विच इज एनकाउंटर फॉर केयर एंड एग्जामिनेशंस ऑफ मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी. ओके सो ये हम लोग कोड कर सकते हैं जब पेशेंट की डिलीवरी आउट ऑफ हॉस्पिटल हुई है और नॉर्मल डिलीवरी हुई है और हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है सिर्फ रूटीन पोस्टपार्टम केयर के लिए. ओके नेक्स्ट चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कार्डियोमायोपैथी. उसके लिए कोड है O90.3. यूज यूनिक इन दैट it may be diagnosed in the third trimester of pregnancy but may continue to progress months after delivery. For this reason, it is referred to peripartum cardiomyopathy. So इसके लिए कोड है O90.3 is only for use when cardiomyopathy develops as a result of pregnancy in a woman who didn't have pre-existing heart डिसीज. सो पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिसीज नहीं था लेकिन डिलीवरी की वजह से कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो रही, तो उस समय पे हम लोगों के पास कोड है O90.3. ओके द नेक्स्ट चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन P कोड O94 विच इज सिक्वेली ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड फिफेरिया. ओके सो इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी की वजह से सिक्वेली डेवलप होती है, तो उस समय हम लोगों को कोड देना पड़ेगा O94. ओके O94 विच इज सिक्वेली ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पिपेरिया is for use in those cases when an initial complications of pregnancy develops a sequelae requiring care or treatment at the future date. Okay, then next, after the initial postpartum period, this code may be used at any time after the initial postpartum period. Okay, then sequencing of code O94. This code, like all sequela codes, is to be sequenced following the code describing the sequelae of the complication. Okay, then next chapter specific coding guideline Q terminations of pregnancy and spontaneous abortion. Abortion with newborn fetus. So when attempted terminations of pregnancy results in a newborn fetus, assign code Z33.2 which is encounter for elective terminations of pregnancy and code from category Z37 outcome of delivery. ओके सो दो कोड जाएंगे यहाँ पे Z33.2 एंड Z37 फॉर आउटकम ऑफ डिलीवरी. कब? अबॉर्शंस विथ न्यूबॉर्न फिटस. देन रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शंस फॉलोइंग एन अबॉर्शन. ओके सो इसके लिए सब्सिक्वेंट इनकाउंटर्स फॉर रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शंस फॉलोइंग the spontaneous abortions or elective terminations of pregnancy without complications are assigned O03.4 which is incomplete spontaneous abortions without complication, or code O07.4 which is failed attempted terminations of pregnancy without complication. ओके सो ये दो कोड हम लोग दे सकते हैं. ओके कब? जब रिटेन प्रोडक्ट ऑफ conceptions following the abortion. This advice
is appropriate even when the patient was discharged previously with discharge diagnosis of complete abortion. If the patient has a specific complication associated with spontaneous abortions or elective terminations of pregnancy in addition to retained products or of conception, assign appropriate complication code. For example, O03 category, O04, ओके, O07. सो ये वाले कैटेगरी में से हम लोग कोड कर सकते हैं. सो हमारे पास कोड है O03.4 इनकम्प्लीट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, ओके, या O07.4. The next complications leading to abortion. Codes from Chapter 15 may be used as additional codes to identify any documented complications of the pregnancy in conjunction with codes in category O04, O07 and O08. Okay. Then next chapter specific coding guideline are abuse in pregnant patient. For a suspected or confirmed cases of abuse of a pregnant patient, a code from category O9A.3, which is physical abuse complicating pregnancy, childbirth and puerperium. Okay, O9A.4 sexual abuse complicating pregnancy, childbirth and puerperium, and O9A.5 psychological abuse complicating pregnancy, childbirth and puerperium should be sequenced first, followed by the appropriate codes to identify any associated current injury due to physical abuse, sexual abuse and the perpetrator of abuse. ओके, सो इसके हिसाब से हम लोगों को सीक्वेंस लगाना है. ये 3 कोड है. ओके, फिजिकल, सेक्सुअल एंड साइकोलॉजिकल. Then last chapter specific coding guideline of this chapter. Yes, COVID-19 infections in pregnancy, childbirth and puerperium. During pregnancy, अभी पेशेंट प्रेग्नेंट है. ओके, when COVID-19 is the reason for admissions or encounter. अभी पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसको कोविड हुआ है. ओके, सो उसके वजह से वो एडमिट हो रही है. सो उस समय हमारे पास कोड है O98.5, विच इज अदर वायरल डिसीजेस कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड एंड puerperium should be sequenced as the principal or first listed diagnosis, and code U07.1 which is COVID-19 and the appropriate codes for associated manifestation should be assigned as additional diagnosis codes from chapter 15. Always take sequencing priority. The next scenario, if the reason for admission is unrelated to COVID-19 but the patient tests positive for COVID-19 during the admission. Okay, so the appropriate code for the reason of admission should be sequenced as a principal डायग्नोसिस. ओके, सो जो भी रीज़न रहेगा एडमिशन का उसको हम प्राइमरी कोड देंगे. एंड कोड्स O98.5 एंड U07.1 एज वेल एज द अप्रोप्रिएट कोड्स फॉर एसोसिएटेड COVID-19 मैनिफेस्टेशन शुड बी असाइंड एज अ एडिशनल डायग्नोसिस. ओके, सो इस तरह से हम लोगों को O98.5, U07.1 ये दोनों कोड देने हैं. ओके, सो इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर ख़त्म होता है. ओके, सो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसलिए 1 आवर लग गया. ओके, सो फिर भी मैंने थोड़ा शॉर्ट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश की. ओके, सो गाइज थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, नेक्स्ट जो चैप्टर है, जल्द से जल्द मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा. ओके, और आपको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ नोट्स चाहिए, कुछ वैकेंसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए
तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप चैनल से कनेक्ट हो सकते हो। ओके, वहाँ पे ज्वाइन करो, और नहीं तो फिर आप इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो गए तो पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा। तो आराम से आप जो भी आपका प्रॉब्लम है या कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो आप इजीली मेरे साथ शेयर कर सकते हो। जितना मेरे से होता है उतना मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू, बाय बाय।